Hello and welcome to Dr. Speak, your one-stop place where you can come to with your queries, any doubts that you might have, anything you want to know about coronavirus, the pandemic, which is right now still racing through the world, infecting people. Any medical queries that you might have related to COVID or any other medical issue as well, you can raise it right here. You can have it on the phone line with us. You can just call us and connect with us, or you can get onto Facebook or Twitter, and we'll have the pinned window there for you of the show there as well, and you can leave your query there and we'll take it up with our panel of doctors who are experts in their respective fields, particularly in these COVID times. I'm Gautam and with me is Rajni, and Rajni, today we have a special edition really of Dr. Speak, don't we? बिल्कुल गौतम, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है और विश्व भर में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस बी के दीर्घकालीन संक्रमण यानी लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन के साथ जीवन जी रहे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात की ओर चेताया है कि अगर इस रोग की ठीक ढंग से रोकथाम नहीं की गई तो कुछ ही दशकों में ये रोग भयावह रूप ले सकता है। कैसे इस रोग को पहचाना जाए और कैसे इसकी रोकथाम की जाए, आज इसी विषय पर हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी देंगे और आप भी इस रोग से संबंधित जो भी अपने सवाल हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। तो क्यों ना अपने गेस्ट का तारुफ किया जाए गौतम। Definitely. Even in India, hepatitis in all its 5 forms, but primarily in 2 forms, is quite prevalent and lethal as well. And since it affects the liver, which is a vital organ, it can have implications for COVID patients as well. It counts among those comorbidities too. And to talk about it today, we have 2 experts, like we said, in their respective fields. We have Dr. Shivkumar Sareen, he's Director, Institute of Liver and Biliary Sciences, ILBS, more popularly known as that, and Dr. Anoop Saraya, Professor and Head Gastroenterology, is also with us, of the All India Institute of Medical Sciences in Delhi. Welcome to you both. Dr. Sareen, I'll come to you first. In terms of chronic patients of hepatitis, be it of any kind, there are 5 kinds, primarily B and C. What sort of protocols do you think have to be maintained if they have to keep themselves safe and secure in these COVID times? Well, thank you, Gautam. And I would start with showing the fingers in the hand. The small finger, you can think of hepatitis A. This is B, this is C, this is D, and this is E. These are 5 viruses normally which can involve and afflict the liver. And ये छोटी उंगली जो है हेपेटाइटिस ए माने तो ये बच्चों में होता है और भोजन और पानी से आता है जी। और द सेकंड वन इज द हेपेटाइटिस ई, ये भी फूड एंड वाटर से आता है। हेपेटाइटिस बी एंड सी, दीज आर द वंस, एंड डी समटाइम्स व्हिच इज विद बी is because of blood and transmission from mother to the baby. If you remember this, if something comes from mother, you think it is part of your body. भाई माँ से आया है तो अपना ही होगा। इसीलिए हेपेटाइटिस बी once it comes from mother, तो ऐसा लगता है कि लाइफ लॉन्ग साथ रहेगा और वो क्रॉनिक हो जाता है। मतलब बॉडी उसको अपने आप निकाल नहीं सकती। बॉडी समझती है कि ये हमारा अपना ही वायरस है, अपना ही भाग है। So 80% of the hepatitis B in India and many parts in the East are from mother to baby transmission. Therefore, suppose somebody comes and he says कि साहब मैं 30 साल का हूँ and मुझे कल पता लगा कि मेरे को hepatitis B है, तो हम कहेंगे कि अरे भाई पता तो कल लगा, पर वायरस की उम्र और तुम्हारी उम्र बराबर होगी। तुम 30 के हो तो वायरस भी हो सकता है 30 का हो, तो मदर का टेस्ट करते हैं जी। और मदर में वायरस भले ही ना हो पर उसके कुछ प्रोटीन्स, वायरस के कुछ जो हैं पोर्शंस हमें अगर मिल जाते हैं विच इज़ पॉजिटिव इन 80%, तो लगता है हाँ भाई माँ से बच्चे को गया है। तो पहला सवाल कि अब कोविड के टाइम में क्या हम इन लोगों को कैसे स्वस्थ रखें। तो अगर आपका वायरस 30 साल से है या आपकी उम्र 20 है या 40 है, तो एज ऑफ वायरस इज दैट मच, देन यू मस्ट बी अवेयर कि भाई मैं उसका कैसे ख्याल रख रहा हूँ। Normally, only 5% of these people who are having hepatitis B have symptoms. मतलब 80-90% में वायरस पता ही नहीं लगता है, चलता जाता है। जी।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी को कोविड का इन्फेक्शन हुआ है और भारत में इतने लाखों लोगों को हुआ है, तो भाई जब आप अस्पताल जा रहे हो तो अपना हेपेटाइटिस बी चेक करा लो, सी भी साथ में चेक करा लो। और चूंकि 100 में से 4 के है, 4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज इट, तो क्या पता किसी कारण से हो, और घर में किसी और को हो तो जरूर टेस्ट करा लें। और हाँ, ये जो नया डेटा हम लोग देख रहे हैं कि जब कोविड हुआ है तब से लोग बच्चे को टीका लगवाने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी का टीका जो जन्म पे लगना चाहिए, फिर 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे, जिससे कि बच्चा लाइफ लॉन्ग बचा रहता है। आप कोरोना की वैक्सीन के लिए इतना परेशान हैं कि वैक्सीन कब आएगी कब आएगी, कैसे बचेंगे। अरे भाई, हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन है, ये वायरस माँ से बच्चे को आ रहा है, और अगर आपने बच्चे को लगा दिया टीका पैदा होने पे 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे, तो बच गया लाइफ लॉन्ग। बिल्कुल जी। तो जो आजकल हम देख रहे हैं कि लोग टीका लगवाने ही नहीं जा रहे हैं जी जी। या दवाइयां लेने नहीं जा रहे हैं, तो ये एक कोविड टाइम्स में थोड़ी सी वीकनेस है। बट हाँ, थ्रू योर चैनल, थ्रू योर मीडिया, आई वांट टू से यहाँ पे जिस चीज़ की वैक्सीन, और 100 रुपए में टीके लग जाएंगे सारे, जी तो आप जरूर लगवाएं। और बच्चों को, और बड़े भी लगवा सकते हैं, किसी भी एज में हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं, एंड यू आर प्रोटेक्टेड फॉर लाइफ। जी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डॉक्टर एस.के. सरीन आपने कही है कि जो वैक्सीन है उससे 95% जो है इलाज सुनिश्चित हो सकता है अगर नवजात शिशुओं को ठीक ढंग पर और ठीक समय पर उनको ये वैक्सीनेशन दी जाए। डॉक्टर अनूप सराया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनूप, WHO ने भी बड़ी चिंता जाहिर की है इस बात की ओर कि कोविड संक्रमण के कारण जो एक अभियान था विश्व मुक्त हेपेटाइटिस मुक्त विश्व बनाने में, उस अभियान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका लगा है और आगे आने वाले दिनों में खासकर छोटे बच्चों को ये बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। क्या एहतियात रखे जाएं? डॉक्टर सरीन ने जैसे बताया कि कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके भीतर ये मौजूद है और उनको किसी भी तरीके के लक्षण सामने नहीं आते हैं, तो किस तरीके से सचेत रहा जाए इस बीमारी के प्रति? देखिए, जहाँ तक सचेत रखने का सवाल है, जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो प्रिडोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस बी का, वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजेंटल है। यानी 5 साल की उम्र तक जिनमें शुरुआती दौर में इन्फेक्शन आ जाता है, एक तो इनमें क्रॉनिसिटी के चांस ज़्यादा होते हैं, और वो बच्चे जिनमें कि माँ से ये संक्रमित होता है बच्चे के अंदर, उनमें भी क्रॉनिसिटी के चांस ज़्यादा होते हैं, यानी ये कैरियर पूल बनाते हैं। तो एक तो जैसे आपको बताया कि हमको अगर बचना है तो पहली चीज़ तो ये है कि ये अपने मुल्क में होता भी है कि आप जब ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर आप माँ का टेस्ट करते हैं, अगर माँ सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, यानी अगर उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन मौजूद है, तो ये संक्रमित होने का चांस ज़्यादा होता है। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर ई एंटीजन भी पॉजिटिव है, DNA लोड ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बच्चे में ट्रांसमिट होगा। तो इससे बचने के लिए चाइल्ड बर्थ के टाइम ही वो माँ जो कि पॉजिटिव हैं उसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ भी टीका देते हैं, और वैसे भी बच्चों को अगर हेपेटाइटिस बी से बचाना है तो उसके लिए भी वैक्सीनेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ विद इन 12 आवर्स हम लोग रेकमेंड करते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा, जो एडल्ट्स हैं, यानी एक हाई रिस्क ग्रुप कहलाता है, जिसमें कि हम हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस एक्वायर कर सकते हैं, वो ग्रुप कौन सा है? देखिए, जैसे डॉक्टर सरीन ने इसके पहले बताया कि बी एंड सी, इनका संक्रमण पैरेंट्रल रूट से होता है, यानी ये इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट से हो सकता है। आप अगर नाई की दुकान पे जाते हैं, उस तरह वो इस्तेमाल करता है, और उस तरह उसने इसके पहले किसी ऐसे मरीज में इस्तेमाल किया है जिसको कि हेपेटाइटिस बी या सी थी, तो उसके मार्फत ये ट्रांसमिशन हो सकता है। ब्रश आप शेयर करते हैं, नीडल, जो ड्रग एब्यूज़र्स हैं जो नीडल शेयर करते हैं, तो उसके थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो जो हाई रिस्क ग्रुप है, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डायलिसिस में काम करने वाले लोग हैं जो ब्लड प्रोडक्ट से डील करते हैं, ब्लड बैंक में काम करने वाले लोग हैं, लेबोरेटरीज में काम करने वाले लोग हैं, या हीमोडायलिसिस पे जो लोग हैं जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या की ज़रूरत पड़ती है, या जो हीमोफिलिक्स हैं, या इस तरह का जो हाई रिस्क ग्रुप है, या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं इनके, या प्रोफेशनल सेक्स वर्कर्स हैं,
इनके अंदर भी अगर हेपेटाइटिस नहीं है यानी वो सरफेस एंटीजन नेगेटिव हैं तो उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन जरूर दे देना चाहिए जो बचाव के लिए। और जो बचाव का सवाल है तो हमको, जैसे मैंने कहा कि बी और सी का संक्रमण चूंकि आप देख रहे हैं पैरेंटल रूट से हो रहा है, तो आप अपने जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो अपनी टॉवल शेयर ना करें, ब्रश या रेजर या शेविंग किट शेयर ना करें। ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं और सेफ प्रैक्टिसेस में, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में आप इस्तेमाल करें बैरियर्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे आप बच सकते हैं किसी हद तक। और वैक्सीन जैसे आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन या हाई रिस्क ग्रुप जो है उसमें भी आप वैक्सीन आप उनको दे सकते हैं, इससे इसका एक बचाव हो सकता है। एक सवाल मेरे ही जहन में आ रहा था डॉक्टर साहब, डॉक्टर सरीन, इफ यू कुड आंसर, you know, if one has not been vaccinated as a newborn and a child, you know, for hepatitis B, and one wants to get the vaccine, you know, as an adult or a grown up, relatively speaking, then does one need to first get a test done for hepatitis and figure out whether he or she has it already, although the symptoms may not have manifested themselves before getting the shots? I knew this will be coming, Gautam, this question. Most people ask it. जी. Okay, should I get tested before I get the vaccine? In general, if there is nobody in your family who had hepatitis B, for example, father, mother, brother, sister, no one had hepatitis B, and you are not a healthcare worker, doctor नहीं हो, nurse नहीं हो, आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर हाँ, क्योंकि आपका एक्सपोजर ही नहीं है, एक्सपोजर कब होगा? जब कोई चीज़ आपके शरीर में जाए और ब्लड में चली जाए। दिस हैज़ टू गो इनटू योर ब्लड। नीडल है, रेजर है, दैट हैज़ टू गेट इनटू योर ब्लड। सो देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग टेस्टेड for getting a vaccine, and it can be taken at any age by anybody. More so when you are likely, to get into an age where surgeries are common. For example, appendix, prostate, or ovarian surgeries, or anything, or heart problems, interventions. A vaccine is very effective in children, actually 100%, 99.5%, and in adults close to 95%. हाँ, डायबिटिक्स हैं, ओवरवेट हैं, अल्कोहल है, स्मोकर है, उनमें वैक्सीन कई बार काम नहीं करती, उनमें कोई भी चीज़ काम नहीं करती। तो इसलिए उनके अलावा देयर इज नो नीड। एंड फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेज यू शुड गेट ए बूस्टर मे बी आफ्टर 10 years or so, because they are repeatedly exposed as an occupational hazard. They are repeated. One more thing I wanted to say about Corona times and hepatitis. You know how many deaths have occurred, or how many people are infected due to Corona? 1.5 million, 1.4 million in India. And hepatitis B alone has 40 million. The number of deaths due to hepatitis B alone are more than HIV, malaria and TB put together. And last 20 years the numbers are increasing, they are not decreasing. तो हम इतना एक कोरोना के लिए इतना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खर्चा ना करो, बचाओ नहीं, but we have spent so much, media has given so much, and how many people have died? Maybe 35-40,000 or so, and infected are 1.45 million. On the other hand, the number of deaths due to hepatitis B in the world are much more than HIV, TB and malaria, but still no attention. So do not forget that the number of deaths are more, number of infected are more due to hepatitis B and C. And today being the World Hepatitis Day, as a doctor, as a specialist, मेरी गुहार है, मेरी एक इच्छा है कि लोग इसको याद करें और सब जुट के इसको बचाने के प्रयास करें. But get vaccinated. If you aren't vaccinated, get it done, Gautam, today. Okay.
डॉक्टर अनूप सराया, डॉक्टर सरीन ने भी बात कही कि आंकड़े जो हैं हेपेटाइटिस को लेकर संक्रमण के वो घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बीमारी इतनी जानलेवा क्यों है जब इसका वैक्सीन मौजूद है, और उस वक्त में जब हम कोविड संक्रमण से जूझ रहे हैं जिसका कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, उस वक्त में तब ये जानना और भी ज़रूरी हो जाता है कि हेपेटाइटिस का जान पर इतना खतरा क्यों है। और इनके लिए दवाइयाँ भी हैं मेरे ख्याल से, एंटीवायरल्स हैं, दे कैन बी टेकन सम ऑफ द एंटीवायरल्स इन ऑर्डर टू क्योर द अफ्लिक्शन। गौतम, ये आपने एक ऐसा सवाल पूछा है। देखिए, हेल्थ जो है ये सिर्फ ये कहा जाए कि ये मेडिकल इशू है, ऐसा नहीं है। इसके डिटर्मिनेंट्स बहुत सारे होते हैं, और हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहां गरीबी अपने आप में एक बीमारी है, आपके पास वैक्सीन हो, आपके पास दवाइयां हो, सब कुछ हो, तो भी उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि ना तो टेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, ना दवाई अफोर्ड कर सकते हैं, ना आप उन तक पहुंच सकते हैं। सवाल ये है कि जब तक हमारी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी किसी बीमारी को टैकल करने की, तब तक उस बीमारी से हम निजात नहीं पा सकते गरीब मुल्क में। आज एक बड़ी तादाद है, अगर आप देखें, जो गरीबी रेखा के नीचे जीती है जी। उसकी लिविंग कंडीशंस ऐसी खराब हैं। अगर आप दिल्ली में ही देख लीजिए तो एक स्लम्स में और अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी, लाखों की तादाद में है, और उनका जिस तरह से वो रहते हैं उधर बीमारियों से बच पाना इतना आसान भी नहीं। एक दूसरे के थ्रू भी संक्रमण हो सकता है। ब्लड बैंक की बात करिए तो आप बहुत सारे, आपको आज भी मैंडेटरी होने के बाद भी शायद कई जगह ऐसे ब्लड बैंक भी हो सकते हैं इस मुल्क में जहां टेस्टिंग भी ना होती हो, ये भी एक संभव है। जहां आप ऑपरेशन थिएटर्स हैं वहां पे भी शायद उस तरह की फैसिलिटीज ना हो जहां आप ये इंश्योर कर सकें कि ये सारी स्टेराइल कंडीशंस में ही सारे काम हो रहे हैं। ये हमारी मुल्क की असलियत है। तो आप दवाइयां होने के बावजूद लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसा नहीं। अगर आज रूरल और अर्बन एरिया में आप 32 रुपए और 20 रुपए पर डे पे सरवाइव कर रहे हैं, तो ये उम्मीद करना कि इन दवाइयों के बावजूद, वैक्सीन के बावजूद लोग उनको इस्तेमाल कर पाएंगे और दवाई से लड़ पाएंगे, बीमारी से लड़ पाएंगे, एक गरीब मुल्क के लिए शायद मुश्किल है। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी तरफ देखिए, एक तो लोगों में उतनी अवेयरनेस भी नहीं। आज भी आप देखते होंगे, आज भी एक उस तरह से कई लोगों की हजामत बनते हुए आपने देखा होगा गाँव में। तो हम उस तरह की, आज भी कान छिदवाने के लिए लोग जाते हैं, आज भी टैटू लगते हैं बदन पे, तो जिस पे जहाँ की उस तरह की प्रिकॉशंस नहीं ली जाती, तो इन सब से हमारे संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। तो दवाइयाँ होने के बाद भी हो सकता है, चूंकि हम अनभिज्ञ हैं, हमारी जनता कई चीज़ों से अनभिज्ञ है, और इस वजह से वो प्रिकॉशन नहीं लेती है और ये बीमारी फैलती रहती है। राइट। डॉक्टर सरीन, बहुत विस्तार में डॉक्टर सराया ने बताया कि किस तरीके से ये बीमारी जो है वो जान पे ख़तरा डाल सकती है। बी और सी को लेकर फिर भी जागरूकता है। अगर हम बात करें तो मीडिया में भी खबरें आती हैं, अखबार में खबरें आती हैं, लेकिन वो संक्रमण जो पानी से फैल सकते हैं या और किसी तरीके से मनुष्य के शरीर में फैल सकते हैं, उन पर कम बात होती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम जॉन्डिस की बात करते हैं या ऐसे किसी संक्रमण की बात करते हैं, उसका हेपेटाइटिस से क्या संबंध है और उस पर हमें क्यों जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए? हेपेटाइटिस बी और सी जनरली जॉन्डिस के द्वारा प्रेजेंट नहीं करते। मतलब ये आप रूटीन में टेस्ट कराते हैं तो मालूम पड़ा कि हेपेटाइटिस बी निकल आया। नौकरी पे जा रहे हैं, पासपोर्ट बनवा रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं, या आपने कोई ब्लड डोनेशन के लिए गए, तब जनरली, क्योंकि मोस्ट पीपल 95% जो हैं उनमें ये साइलेंट होता है। और सी जो है वो भी जब तक, जैसे किसी ने कभी ऑपरेशन कराया हो आज से 20 साल पहले, स्पेशली जब बिल्कुल टेस्ट नहीं होते थे, उस समय खून चढ़ा या एंजियोग्राफी हुई, ऐसे लोगों में रूटीन में कभी किसी ने ब्लड चढ़ा। मैं संदेश जरूर देना चाहूँगा
कि जिन लोगों की कोई सर्जरी 2000 से पहले, सन 2000 से पहले हुई है या ब्लड चढ़ा है उन्हें किसी फॉर्म में, वो अपना हेपेटाइटिस सी का टेस्ट जरूर कराएं। उस समय ये टेस्ट नहीं होते, तो ब्लड से आने वाली चीजें ब्लड के द्वारा ही पता लगेंगी, पर ये जॉन्डिस के द्वारा नहीं आती हैं। उस समय उन लोगों के अंदर सिंपली कभी जब एडवांस डिजीज होती है तब पैरों में सूजन, खून की उल्टी, आंखों में पीलापन या ट्यूमर बनना दिखता है। आपने पूछा कि जॉन्डिस, जिन व्यक्तियों में जॉन्डिस होता है, अगर पेशाब भी पीला है और आंख भी पीली, तब ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये लिवर के कारण है। अगर पेशाब पीला नहीं है और आंख पीली है तो खून की कमी या और किसी पैदाइशी बीमारी के कारण है। पर हाँ, आंख पीली है, पेशाब पीला है और टट्टी सफेद आ रही है तो लगता है कि आंखों में रुकावट है। ये तीन तरह से, आंतों में मतलब पित्त के रास्ते में रुकावट, तीन तरह से हम बता सकते हैं कि लिवर की बीमारी है, लिवर से जो पित्त का रास्ता है उसकी बीमारी है, या खून की बीमारी। पर हाँ, आंख पीली है, पेशाब पीला है, तो दो वायरसेस और हैं। जैसा शुरू में मैंने बताया, हेपेटाइटिस ए बच्चों में या हेपेटाइटिस ई, ये भोजन से, पानी से आ जाते हैं। अब जैसे बारिश का मौसम है इस समय, पहले तो हेपेटाइटिस ई पूरे भारत में होता था। कानपुर के अंदर 70-80 हज़ार लोगों में हो गया, दिल्ली के अंदर 1956 में 50,000 लोगों में था। डॉक्टर सईद, माफ़ी चाहता हूँ, हमारे साथ एक कॉलर है, कुछ देर से इंतज़ार कर रहे हैं। प्रशांत है हमारे साथ फ़ोन लाइन पर, शिवपुरी से, मध्य प्रदेश में। एक बार उनका सवाल सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा को जारी रखेंगे। प्रशांत, आप अपना सवाल बोल सकते हैं। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार। और सभी डॉक्टर से मेरा नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे अभी ये WHO ने ये बताया है कि सर जो N95 मास्क है सर, उसमें जो एक्सिलर लगा हुआ है वो सेफ नहीं है, तो सर उसके लिए हम क्या अल्टरनेटिव ले सकते हैं? और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे अभी एक मतलब WHO ने बताया था कि सर जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है उनको कोरोना होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और जो भी है वो उनके लिए भी वही है क्या? जी। Okay, Dr. Sareen, would you like to respond to the two questions that he had? Yeah, the respirator that is seen in this mask also, this respirator या जिससे हम लोग खुद अपनी सांस तो बाहर निकाल लेते हैं, पर इसमें दूसरे का आपके अंदर सांस नहीं आती, तो वायरस आपको तो नहीं मिलता, पर अगर आपको इन्फेक्शन है तो दूसरों को चला जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा डबल मास्क लगाते हैं, पहले ये और उसके ऊपर एक दूसरा मास्क, जिससे कि आप दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। हालांकि आप बचे हुए हैं पर दूसरे को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही सलाह है कि अगर आपके मास्क में रेस्पिरेटर है तो आप अपने लिए रखें, पर आप बाहर जाएं तो एक दूसरा मास्क, उस पर सर्जिकल मास्क जरूर लगाएं। और हेपेटाइटिस बी के मरीज में कोविड का इन्फेक्शन ज़्यादा हो ये कहना मुश्किल है, पर हाँ, अगर किसी के लिवर में फैट है, मतलब फैटी लिवर है, मोटा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपने तो देखा कि कोविड के मरीजों में डेथ किस में ज़्यादा होती है? अरे भाई, जिसके डायबिटीज़ था, बीपी था उसका, या एज ज़्यादा थी, उन लोगों में डेथ ज़्यादा होती। वो इसीलिए है कि लिवर के अंदर फैट था, वो चर्बी है। तो जब वायरस, कोविड का जो वायरस है कोरोना, जब शरीर में आता है तो फेफड़ों में भी जाता है और साथ में लिवर में भी इंजरी करता है। और लिवर की इंजरी उनमें ज़्यादा होती है जिनके लिवर में फैट है, डायबिटीज़ है, बीपी है, हाइपरटेंशन। अब रहा किसी को हेपेटाइटिस बी है और उसको कोरोना हो गया, तो बी का वायरस एक बार तेजी से बढ़ सकता है। हमने कई केसेस देखे हैं और चाइना से बड़ी रिपोर्ट्स हैं कि कोरोना के बाद में हेपेटाइटिस बी का नंबर बढ़ने लगता है। तो ये उन लोगों को जिनके हेपेटाइटिस बी है और कोरोना हो गया, तुरंत हेपेटाइटिस बी की, अगर वो पहले नहीं खा रहे थे दवाइयाँ जो कि खानी चाहिए, किसी किसी के अंदर नहीं, तो अगर वो हेपेटाइटिस बी की दवाई नहीं खा रहा तो तुरंत उसकी दवा शुरू करनी चाहिए। वायरस की तादाद को नहीं बढ़ने देना चाहिए। और अगर जरा सा भी पीलिया हो या लिवर के टेस्ट खराब हो तो आप स्पेशलिस्ट को जरूर जाएं, क्योंकि ऐसे में जान का खतरा हो सकता है। और किसी को सिरोसिस है, भारत में 10 मिलियन के आसपास लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी से लिवर डिजीज एडवांस्ड है। ऐसे लोगों के लिए
ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाएं अस्पताल में परामर्श लें, टेली कंसल्ट लें अगर आप नहीं जाना चाहते। पर हेपेटाइटिस बी के मरीज को कोविड हो तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा खतरा तो है। जी डॉक्टर अनूप, आपके लिए भी सवाल है, लेकिन उससे पहले एक मैं दर्शक ने इस पे हमारे लिए एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, जी 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 क्योंकि जी इस पे कुछ हम लोगों का अपना डेटा, अपना एक्सपीरियंस भी है। करीब 1370 पेशेंट जो हम लोगों ने देखे थे कोविड के यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। तो जो क्रॉनिक लिवर डिजीज, जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया, आपने बताया कि जिनको सिरोसिस है या उनके अंदर अगर कोविड होता है, तो ये हमने देखा कि वो पेशेंट जो एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर करके आते हैं, जिनके अंदर कोई और ऑर्गन फेलियर होते हैं, उनके अंदर मोर्टेलिटी बहुत हाई है। जिनमें प्लेन एंड सिंपल हेपेटाइटिस बी या सी इन्फेक्शन था, लेकिन उनके अंदर कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज मतलब सिरोसिस नहीं थी, Okay. वो सारे के सारे सरवाइव किए। ऐसे तकरीबन 10 या 11 मरीज थे 50 में जो सब सरवाइव किए। जी। लेकिन वो पेशेंट जिनके अंदर सिरोसिस थी और ऑर्गन फेलियर लेके आए या ACLF लेके आए, उनके अंदर मोर्टेलिटी बहुत हाई थी। जी तो जी दूसरी चीज, वो पेशेंट जो कि कोरोना से पीड़ित थे और उनके अंदर लिवर के साथ साथ जिनको निमोनिया भी था, यानी कोरोना की वजह से जिनके लंग में खराबी थी और जिनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा, उनके अंदर भी आउटकम बहुत खराब था। तो जो ऐसा नहीं है कि जो कोरोना के मरीज हैं उनमें बी और सी के चांस ज्यादा हैं, बल्कि ये है कि अगर बी एंड सी के मरीजों को भी कोरोना होता है तो ये डिपेंड करता है कि लिवर डैमेज कितनी है, उनको सिरोसिस है या नहीं है, उनके अंदर ACLF है या नहीं है, ये डिटरमिन करता है कि उसका आउटकम क्या होगा। जी हमारे साथ एक कॉलर हैं आफिसा अली नोएडा से। आफिसा, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर, मेरा सवाल डॉक्टर सरीन से ये है सर कि मेरा बेटा 3 महीने का होने वाला है, अभी 6 तारीख को 3 महीने का हो जाएगा। उसे सिर्फ बर्थ के टाइम पे जो टीके लगते हैं वो लगे हैं, उसके अलावा कोई टीका नहीं लगा है। तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? डॉक्टर थोड़ा सरीन, तो आप प्रॉब्लम है कि समय पे टीका लगाना एक बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे सारा उसका सिस्टम डिले हो गया है। पर एक अच्छी बात दूसरी तरह से अपन देखें कि कोई भी बच्चा अगर बाहर नहीं निकला या आपका बच्चे को बाहर लेके नहीं गए तो बाकी इन्फेक्शंस, पोलियो या मीजल्स या ये सारे से भी बचे हुए। पर अब देर नहीं करी, जो होना था हो गया। मेरे ख्याल से अब 3 महीने पे आप बर्थ डोज तो लग चुकी है, 3 महीने के हिसाब से थोड़ा 4-6 महीने आप 4-6 हफ्ते पीछे हो गए, पर सारे अपने वैक्सीनेशन करवा लीजिए, बच्चे को ज़रूर ले जाइए और पूरे जब तक की वैक्सीन ख़त्म ना हो बराबर लेके जाइए। आप प्रोटेक्टेड रहिए, उसको भी प्रोटेक्शन दीजिए। डॉक्टर सरीन, वैक्सीनेशन से ही संबंधित एक सवाल है। अमित साहू दिल्ली से पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन था वो फरवरी में लिया था इस साल, और उनका जो दूसरा डोज है वो मिस हो गया है कोरोना की वजह से। क्या करना चाहिए? ये बहुत कॉमन है। अब थोड़ा तो आप कोरोना से डर गए, थोड़ा आपने लापरवाही भी करी। लापरवाही इसलिए कि अरे भाई अगर था तो वैक्सीन तो लगवा सकते थे, वहां दिखानी थी और आंख और मुंह नाक को तो आप मास्क से छुपा लेते, वहां पे वैक्सीन लगनी। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने इसको सीरियस नहीं लिया। पर हाँ, अब दोबारा से मेरा विचार है वैक्सीन के 3 शॉट ले लें, क्योंकि 3 वैक्सीन इसलिए बताई जाती हैं कि लोग ज़्यादा पैसा ना खर्चें और इसलिए कि भाई हाँ सहूलियत रहे। पर अब पुरानी बात भूल जाएं, क्योंकि इसकी मेमोरी 1 महीने में आ जानी चाहिए। सेकेंड शॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड शुड नॉट बी लॉन्गर देन 4 और 6 वीक। सेकेंड और थर्ड में 5 महीने निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक बार बॉडी के जो सेल्स हैं उसके अंदर हेपेटाइटिस बी का छोटा सा एक्सपोजर होता है, और उसके बाद में सेकेंड एक्सपोजर देते ही बॉडी में खूब सारी प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बनती हैं। वो मौका निकल गया आपके हाथ से, तो दोबारा से बिस्मिल्लाह करना पड़ेगा। Okay. Vijay Lakshmi Kunteta is in fact asking on social media on Facebook. She's saying that I'm 57 years old and I am RA positive. I have taken hepatitis B vaccine around 10 years back.
when should I take the next dose of the vaccine, Dr. Saraya? देखिए, अगर आपको कोई खास रिस्क नहीं है तो ऐसा वैक्सीन का भी बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर होते या आप ऐसे सेक्टर में काम कर रहे होते जहां एक्सपोजर का बहुत ज़्यादा चांस रहता, तो मैं कहता कि आप बूस्टर ले लीजिए। क्योंकि एक चीज़ और है, अगर आप पूरा कोर्स ले चुके हैं तो ये भी देखा गया है कि इवन 1 या 2 शॉट्स के बाद भी मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। ये मेमोरी सेल्स रहती हैं, जब भी कभी एक्सपोजर होता है तो वो एक्टिव हो जाती हैं और एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब आपको कोई बूस्टर की ज़रूरत है, लेकिन जनरली जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया कि हम उन पेशेंट्स के अंदर या उन लोगों के अंदर जो थोड़े से हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनमें रिकमेंड करते हैं कि 10 साल के बाद अगर आप चाहें, अगर आपके अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी का टीटर कम हो गया है, तो आप बूस्टर ले सकते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं बिहार से, संतोष हैं। संतोष, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं 10 साल से कोरोना क्या बोलते हैं हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है और काफी दिनों से है, और मेरे दाहिनी तरफ जो है मैडम जो हमको दर्द होती रहती है। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं? काफी दिनों से मैं दवाई खाई थी, उसके बाद डॉक्टर साहब बोले कि अभी दवाई नहीं चलेगी, अब ठीक ठाक रहोगे। तो मैं काफी चिंतित में रहता हूँ। और जी, डॉक्टर सरीन, अगर आपको सवाल आवाज़ आप तक पहुंची हो। जी, मैं समझता हूँ शायद आपको अगर गलत नहीं सुना मैंने, हेपेटाइटिस बी 10 साल से है, पहले दवाई खाया अब नहीं खा रहा, ये सही बात है क्यों सर? I don't think he's with us on the line anymore, Dr. Sareen, but I think he wanted to know what should he be doing now. Is it okay not to have any medicines anymore? मेरा विचार है, अगर आपका हेपेटाइटिस बी था और किसी डॉक्टर ने सोच समझ के दवा शुरू की थी, तो अब दवा बंद नहीं करें। जैसे अगर हेपेटाइटिस बी है और कोई लक्षण नहीं है, मैं उन सब सुनने वालों को ये कह रहा हूँ कि दवा लेने से नुकसान नहीं। दवा लेने में पैसे, जैसे सराय साहब ने बताया कि भाई खर्चा थोड़ा तो है, हालांकि अब एक नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है जिसमें फ्री दवाई हर जगह मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर्स वगैरह में मिलने लगी, पर हो सकता है कहीं ना मिले। तो दवाई अगर आप ले लें उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, वायरस दबा रहेगा। वायरस दबा रहेगा तो कैंसर होना, लिवर का सिरोसिस होना वो रुक जाएगा। और मेरे विचार से हर आदमी को, हालांकि ये सब जने नहीं मानेंगे, हर आदमी को जो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, जैसे अपन हेपेटाइटिस सी वाले को, HIV वाले को दवाई देके वायरस को दबा देते हैं, तो हेपेटाइटिस बी वाले का भी वायरस दबा रहे तो उसका लिवर नहीं बिगड़ेगा। अब आपने 10 साल पहले शुरू की, अब डॉक्टर कहता है भाई तुझे कोई बीमारी तो नहीं दिख रही, छोड़ सकता है तो छोड़ दे। आपने उसकी ये बात मान ली, छोड़ सकता है तो छोड़ दे, और आपने छोड़ दी। ऐसा ना करें। ढेरों मरीज ऐसे आते हैं हमारे पास जो दवाई छोड़ने के बाद उनको पीलिया हो गया, जिसे हम कहते हैं रीएक्टिवेशन। रीएक्टिवेशन का मतलब वायरस जो चुपचाप बैठा था वो वीरप्पन की तरह बाहर निकल आता है, फटाफट अपनी गोलियां चला देता है। या कई बार ऐसे व्यक्ति जिनकी पहले दवा चल रही थी और अब दवा छोड़ दी, उनमें वापस वायरस एक्टिव होकर लिवर में ट्यूमर बना देता है। तो मेरे दोस्तों, जो भी किसी को हेपेटाइटिस बी है और अगर दवाई चल रही है तो छोड़े नहीं। जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं रोज, अगर संभव है जरूर लें, नहीं तो किसी एक ऐसे सेंटर से जहाँ दवा मिलती हो जरूर जाके दवाई लें। ओके डॉक्टर सॉरी अनूप सराया, कोविड संक्रमण के काल में भी देखा जा रहा है मानसिक सेहत पर बड़ा असर पड़ रहा है, लोग परेशान हैं। शारीरिक लक्षण तो उभर कर जब सामने आते हैं तब आते हैं, लेकिन उससे पहले ही लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस दिन जब हम हेपेटाइटिस की चर्चा कर रहे हैं और अपने आप में इतना जानलेवा रोग है जैसा कि आपने बताया और जानकारी दी, इस दौरान अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, डॉक्टर अनूप आपसे जानना चाहेंगे। बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। जैसा आपने कहा, ये एक्चुअली ये हम लोगों ने सोचा तो था, लेकिन इस फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा ये शायद उम्मीद नहीं थी। देखिए, वो मरीज़ जो कि कोविड से संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती,
वो एक तरह से आइसोलेटेड रखे जाते हैं। तो वहाँ पे चूंकि उनको उनके घर वाले नहीं मिलते हैं, उनके परिजन नहीं मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से बात कम कर पाते हैं। जी, डॉक्टर की शक्ल भी यही सब शायद इनफैक्ट नहीं हम अपनी दिखती है स्क्रीन पे कि भी दिखा जी, रहे हैं डॉक्टर जी। सराया, क्योंकि अमिताभ बच्चन जिनको कोविड हुआ वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने इसके बारे में एक बहुत ही मार्मिक सा एक ब्लॉग भी लिखा है जिसमें उन्होंने बातें की हैं। वो सब हाँ, बातें की हैं कि किस तरह से इंसान महसूस करता है, अलग थलग पड़ हाँ, जाता है, अकेला रहता है। बिल्कुल। उसको ये भी एक संशय रहता है कि जब मैं बाहर आऊँगा तो मुझसे कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसको हाँ, लेकर भी, क्योंकि आजकल स्टिग्मेटाइजेशन की बात हो रही है। तो ये सारी बातें एक बहुत ही ज़्यादा दबाव जहन पे डालती हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो उस सूरत में ये होता है कि हमने तो देखा है कि यहाँ तक लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं और कुछ ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है, बल्कि एक आध दो पेशेंट्स ने किया भी है हमारे यहाँ। तो इसलिए, और डॉक्टर की मैंने बताया ना कि डॉक्टर की शक्ल भी पीपीई की वजह से दिखती नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। और वो जैसे आपने बताया कि उनको स्टिग्मेटाइज करके उनके साथ एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी होता है जब वो वापस भी जाते हैं। तो ये एक दिक्कत है और इस पे हमको खास ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको ये लक्षण किसी में दिखने लगते हैं तो अगर हमको साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प लेने की ज़रूरत महसूस होती है तो वो लेनी चाहिए। बिल्कुल। एंड डॉक्टर मैं Sareen, would you like to come in on इसमें this as well in terms of हाँ, मैं इसमें हाँ, जी दो तीन बातें कहना चाहूँगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत साल पहले जब हेपेटाइटिस सी नया नया निकला था तो मुझे यहाँ से भेजा गया कि आप जरा श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में देखो कि यहाँ पे एक गांव है जिसमें करीब 1500 लोग रहते थे। 800 लोगों के अंदर हेपेटाइटिस सी हुआ, क्योंकि एक ही इंजेक्शन, दूसरे के वही इंजेक्शन, हर एक को ग्लूकोज कैल्शियम चढ़ता था। तो जब मैं गया वहाँ पे मैंने एक अजीब बात देखी कि जो सड़क पहाड़ के साथ साथ चल रही थी उसमें पहाड़ की साइड वाले एरिया में तो हेपेटाइटिस सी जिनको नहीं था वो चल पा रहे थे, और जो हेपेटाइटिस सी वाले थे उनको उस साइड में जिसके दूसरी तरफ खड्डा था, पहाड़ी से नीचे था, उनको कहना कि आप उधर चलोगे। अगर छाता भी छू जाता तो कहते कि भैया इसने मेरे को हेपेटाइटिस सी छाते से भेज दी, कुछ तो पॉसिबल नहीं। तो आउटकास्ट, सोशल आउटकास्ट इतना ज्यादा। हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को अगर हेपेटाइटिस बी पता लग जाए कि ये पॉजिटिव है तो उस सर्जिकल ब्रांच नहीं देते कि भाई तू सर्जरी नहीं कर सकता, ये गलत है। और अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर है, नर्स है, उसको पता लग गया, उसको नौकरी पे नहीं लेते। तो ये मेंटल स्ट्रेस हमारी सोसाइटी ने बनाया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हर व्यक्ति जिसमें इन्फेक्शन है वो बीमार है। ये गलत है। कोरोना में आप देख रहे हैं कि 80% 90% एसिम्टोमेटिक है, पर आप उनको तो कुछ नहीं कहते। और हेपेटाइटिस बी और सी जिसके अंदर खाली वायरस है, इन्फेक्शन है, उनको आप जहन में इतनी तकलीफ देते हैं। उसका मेंटल स्टेटस देखिए, वो अपनी वाइफ को नहीं, एक इंजीनियर था, 13 साल से बेचारी की शादी मतलब का टेंशन चल रहा था, फाइनली शादी की, पर फियांसी को नहीं बता सका कि अगर मैं बता दूंगा तो वो मेरे से भाग जाएगी। शादी के बाद नहीं बता पाया कि बच्चे होंगे, फाइनली जब बताया तो वाइफ ने कहा कोई बात नहीं, तुम क्यों ऐसे टेंशन में थे, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, सुख और दुख दोनों में है। उस वाइफ की इतनी बात से, समझदार वाइफ थी, किस्मत इस आदमी की भी अच्छी थी, जी 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 उस आदमी की जिंदगी बन गई। पर वो हो सकता था। एक और लड़की थी, 17 साल की थी जब उसको हेपेटाइटिस बी पता लगा। जब ससुराल में गई, वहां पे उन्होंने टेस्ट कराया, पेट में दर्द के लिए, पता लगा हेपेटाइटिस बी है, तो उसको अपने मायके भेज दिया, 4 साल वहीं रही। बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये मेंटल स्ट्रेस सोसाइटी का दिया हुआ। जी अगर हम कहें कि ये ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से, और आज के दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे मैं जरूर चाहूंगा कि एक सोशल रिफॉर्म की जरूरत है, एक लोगों की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि भाई आज उसको है तो कल मुझे भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सरीन, एक सवाल आ रहा है एंड डॉक्टर सराया आप भी इस पर गौर करें, आपसे ही सवाल करूंगा मैं। महेश अरोड़ा पूछ रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस नाउअडेज ऑन एडिक्वेट स्लीप। आई एम 70 years of age and get sound sleep for around 5 or 6 hours, and I compensate further by taking a nap during the day. Is it okay, or is it a must to take full sleep time in the night only? I have no comorbidity and not taking any medicine.
इनफैक्ट शुरू में मेरे एक फोन आने लगा था तो मैं शुरू का पार्ट नहीं सुन पाया। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे? वी हैव अ जेंटलमैन महेश अरोड़ा पूछ रहे हैं कि वो डॉक्टर सरीन से उसका जवाब ले लीजिए क्योंकि बीच में जी डॉक्टर सरीन। 70 की एज पे 70 साल की उम्र पे अगर आप 5-6 घंटे सो लेते हैं तो बड़े किस्मत वाले हैं क्योंकि जो स्लीप है ना वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर भी डिपेंड करती है। जी जब आप खाना कम कर देंगे, एक्टिविटी कम कर देंगे तो भाई नींद भी कम हो जाएगी, चिंता ना करें। हाँ ये है, दिन में अगर आप सोते हैं बहुत अच्छा है, एक दिन को 2 दिन बना लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, पर ये देखें कि हाँ आप फिजिकली फिट महसूस करें। स्लीप डिप्राइवेशन तब होता है कि जब आप सुबह उठें और आप कहें यार टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। इफ टुडे यू गेट अप and say today is the best day of the rest of my life, you had a good sleep. And we are not sleep experts, but I can only tell you, भगवान ने कहा है और हमारे at least my father used to say कि दुनिया में 2.5 नियामत हैं, 2.5 सुख हैं। पहला निरोगी काया, दूसरा रात को अच्छी नींद आ जाए, बाकी आधे में सारी दुनिया। जी और हमारे साथ इस बीच एक और कॉलर जुड़ गई हैं, संतोष जुड़ गई हैं दिल्ली से। अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ सवाल पूछिए अपना संतोष, गो अहेड। मैं सुषमा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी सुषमा जी बताइए। नमस्कार। मेरा जो 6 मंथ का हेपेटाइटिस का डोज था वो मिस हो गया है, तो क्या मैं अभी वो लगवा सकती हूँ? जी 6 महीने पहले आपने हेपेटाइटिस का वैक्सीन का शॉट लिया था? नहीं, 6 मंथ का ड्यू था। हमने नवंबर से स्टार्ट किया था, वहाँ नवंबर का लग गया, फिर दिसंबर का भी लग गया, लेकिन जो 6 मंथ पे लगनी थी वो 16 अप्रैल को ड्यू थी, वो मिस हो गया। ओके डॉक्टर सराया, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? डिले तो हो गया है लेकिन उसको आप 3rd शॉट ले लीजिए। 3rd में फिर भी थोड़ी सी गुंजाइश होती है, जैसा डॉक्टर सरीन ने बताया। पहला शॉट अगर आपने 1 महीने के बाद दूसरा ले लिया था तो उसके बाद अभी आप एक 3rd शॉट ले सकते हैं। जी तो अभी भी वक्त है आपके पास। सुषमा जी, आप अपना डोज जो दूसरा बकाया था, बाकी था, उसको ज़रूर ले सकती हैं। डॉक्टर सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोविड संक्रमण के दौरान बहुत सारे लक्षण बाद में उभर कर जो सामने आए, उसमें जी मिचलाना, उल्टी होना या पेट खराब होना, इसका भी एक लक्षण पाया गया था। इसका क्या हेपेटाइटिस से कोई संबंध हो सकता है? अगर मैं बात करूं एक स्वस्थ लिवर की कोविड संक्रमण के दौरान, तो मैं कैसे जानूं कि मेरा लिवर स्वस्थ है या नहीं, या उसमें किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण मुझे परेशान तो नहीं कर रहा है? इसके 2 भाग हैं। पहला, कोविड के कुछ लक्षण जिसमें लूज मोशन होना या पेट में दर्द या उल्टी होना ये शामिल हैं। ये वायरस गले के अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, फिर अंदर लंग्स में जाके इंजरी करता है, पर कई बार गले से ही ये पेट में भी चला जाता है। और लूज मोशंस में करीब 20% लोगों में डायरिया हो सकता है। तो और ये जिनमें डायरिया है उसमें स्टूल में भी वायरस निकलता रहता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्टूल इज ऑल्सो पॉसिबली इन्फेक्टिव। और बच्चों में आजकल ये बहुत ज़्यादा बताया गया है कि डायरिया, पेट में दर्द और उल्टी होना एक तरह का पीडियाट्रिक एज में कोविड का संक्रमण का एक लक्षण है। अब मेरा लिवर स्वस्थ है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इस पर तो एक अलग चर्चा ज़रूरी होनी चाहिए और हर बार होनी चाहिए। पर अगर आपका लिवर स्वस्थ है तो कोविड इन्फेक्शन में वायरस डायरेक्टली लिवर में जाके अटैक नहीं करता, ये जाएगा लंग्स में, लंग से ब्लड में, आंतों से भी ब्लड के थ्रू ही लिवर में जाएगा। और नॉर्मली लिवर बड़ा सॉलिड ऑर्गन होता है, आसपास किसी को ऐसे नहीं आने देता। हिपेटोट्रॉपिक मतलब जो वायरस सिर्फ लिवर के लिए है वहीं पे इंजरी ज्यादा होती है, जो लिवर के लिए नहीं है उनको ये दूर से हैंडल कर ले। कोविड का वायरस ये हैंडल कर लेता है, अनलेस आपने वो दवाइयां ली हों जो कोविड के लिए टॉक्सिक है, रेमडेसिविर है। तो ड्रग इंड्यूस्ड इंजरी इज वेरी कॉमन in patients after COVID treatment, but not just by directly COVID. Right, we have a caller from Darjeeling. Virendra is joining us on the phone line. Go ahead, Virendra, ask your question. Virendra, can you hear us? हाँ जी, वो मेरा ग्रैंडसन है, उसका 5 साल का बूस्टर लगवाना था, वो उसका अप्रैल महीना में 5 साल पूरा हो गया, मगर ये कोविड का चक्कर से जा नहीं पा रहे हैं।
और वो डॉक्टर लोग भी ठीक से नहीं बैठते थे, वो पीएसएम का डिपार्टमेंट भी ठीक से नहीं खुलते थे, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ। आपका सवाल क्या है एग्जैक्टली? सवाल अभी उसको वो जो 5 साल वाला जो बूस्टर डोज होता है वो अभी हम लगा सकते हैं या जी नहीं? यही आपको 5 साल का बच्चा है, उसका 5 साल पर जो वैक्सीनेशन उसे लगना था वो मिस हो गया है। डॉक्टर सरहीन जानना चाह रहे हैं। देखिए, हेपेटाइटिस के टीके तो बचपन में ही लग जाते हैं, 6 हफ्ते पैदा होते ही, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे। ये 5 साल का टीका हेपेटाइटिस का तो नहीं हो सकता। किसी और अगर बीमारी के लिए आप लगा रहे हैं तो मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर मैं एक बात कहूँगा, टीकों में एक्स्ट्रा लगवाने में बुराई नहीं। आपका मिस हो गया तो भी अब लगवाई लीजिए एक बार, फिर दोबारा पूछिएगा डॉक्टर से। टीका लगाने में कभी भी बुराई नहीं होती। हाँ, थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा, 100 पैसा नहीं 80 पैसा काम तो करेगा। आपको एक बार अपने पीडियाट्रिशियन मतलब बच्चों का जो डॉक्टर होगा उससे भी बात करनी चाहिए, जिन्होंने पहले टीके लगाए होंगे। आप एक बार उनसे भी बात कर लें और जो वो सुझाव दे आप उसको फॉलो करिए। आपके लिए मेरे ख्याल से सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छा वही होगा। कुछ और डॉक्टर सरहीन हमारे पास सवाल आ रहे हैं सोशल मीडिया पे ही। दीपाली दहिया पूछ रही है, व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस व्हाइल गोइंग फॉर गेटिंग अ टैटू और पियर्सिंग? Yes, I think tattoo and piercing is a very common cause, as Dr. Saraya earlier told you, because one should have clearly needles which are fresh. Do not get a reused, sterilized needle and syringes. Also, make sure you go to a person or a place where people are aware of it. Thirdly, if you already are vaccinated, which I strongly advise कि भाई पहले हेपेटाइटिस का टीका लगवा लीजिए, 2 टीके लगा लीजिए, 0 अभी और 1 महीने बाद, then at least you are protected. Then you may get a tattoo. Hepatitis B will be protected, not C. So there is no easy way unless you have for tattooing or for ear piercing, fresh needles. Now even without putting a needle, you can have by gun. Okay. You can have the ear punctures done. So my suggestion would be go to a place to protect. I can only cite an example. I had in 95, 96 a girl coming from Doon school, from one of the very affluent families, and she had her ear pricked from the best jeweler in Delhi, and nobody knew hepatitis C, only we were doing hepatitis C tests. We found she was positive. I said, how many other friends went? There were 2 more, so total 3. We tested other 2 also. All 3 had hepatitis C. Because they got 1 needle, 2nd needle and 3rd needle from the same guy. So I have seen it. My suggestion is be careful, read about it, protect yourself. जी बड़ी महत्वपूर्ण ये बात है जो आप कारण बता रहे हैं, जो ये जानकारी हमें मिल रही है वो कई दर्शकों के लिए बेहद नई जानकारी हो सकती है कि ईयर पियर्सिंग के लिए, टैटू के लिए आप जब जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप हेपेटाइटिस की चपेट में आ सकते हैं। We have some more questions coming in on social media, रजनी। कुणाल मिश्रा डॉक्टर सरहीन आपसे जानना चाहते हैं और वो आपको कह भी रहे हैं, हाय सर, गुड टू सी यू। आई वांटेड टू नो, इज COVID-19, डज इट प्रोग्रेस टू एनी सॉर्ट ऑफ liver damage or cirrhosis or any other thing in healthy individuals? I believe you've also written a paper about it. Yes. Firstly, one thing I forgot, जैसे कोविड की वैक्सीन नहीं है जी, हेपेटाइटिस सी की, डिस्पाइट इट्स डिस्कवरी इन 1989, 31 years there is no vaccine for hepatitis C. So don't be so optimistic that you will get a vaccine for COVID, because both are RNA viruses and they move so fast. We are unsuccessful in hepatitis C vaccine, so protection. जी. And second part is whether COVID causes chronic liver disease. No. But yes, अगर हमने पेपर लिखा, large study called EPCOLIS, Asian Pacific, and Saraya Sahab and their team have also contributed, that if you have somebody who has fatty liver, more likely to get liver injury, liver enzymes are high. But per se, COVID doesn't cause liver injury or cirrhosis. It is unfriendly to liver cells and liver handles it well. जी,
हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं मुंबई से, हमारे साथ बबलू हैं। बबलू, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं लास्ट 1998 से हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हूँ। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला आप कैरियर स्टेज में हो, लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, SGOT SGPT अभी भी नॉर्मल चल रहा है और मेरे को कोई दवाई नहीं है, बट वायरल लोड मेरा बहुत ज्यादा रहता है अरबों में, बट SGPT SGOT नॉर्मल चलता है, तो अभी मैं कोई दवाई पे नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कैरियर स्टेज पर डाला हुआ है। हर 3 महीने में मैं अल्फा फीटोप्रोटीन सोनोग्राफी अपनी लिवर की कराता हूँ, तो मुझे क्या कुछ और करना चाहिए? डॉक्टर सराया, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? अगर आपकी एज आपने कितनी बताई? मेरी एज है 58। और कब से आपको ये हेपेटाइटिस बी है? मैं 97। मेरे ख्याल से अगर आप, जो आपके डॉक्टर हैं वो आपकी बिल्कुल ठीक से केयर कर रहे हैं, क्योंकि यही हमको देखना होता है कि आप इम्यून, इसको हम कहते हैं कि आप, ये इम्यून टॉलरेंस फेज है जिसमें आपके DNA तो बढ़ा हुआ है लेकिन लिवर सेल इंजरी नहीं हो रही है। बस एक इंटीग्रेटेड वायरस की वजह से कभी कभी हमको ये एक नज़र रखना पड़ता है कि आपका अल्फा फीटोप्रोटीन तो नहीं बढ़ रहा है, और वो जो आपका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं वो यही देखना चाहते हैं कि लिवर के अंदर कोई और कॉम्प्लिकेशन तो पैदा नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। दवा हम तब देते हैं जब SGOT SGPT बढ़े हुए होते हैं। अगर आपके एंजाइम्स नॉर्मल हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस समय दवा की ज़रूरत नहीं। जी, बबलू, आपको अपना आंसर मिल गया होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। डॉक्टर सरीन, कोविड संक्रमण के समय में हेपेटाइटिस पर भी ध्यान देना और उससे अपना बचाव करते रहना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। कम से कम आज के कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा जानकारी इस बीमारी को लेकर हम दर्शकों तक पहुंचा पाए हैं। बहुत कम वक्त है हमारे पास, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर सरीन कि इस वक्त में, इस नाजुक वक्त में किस तरीके से अपनी ओवरऑल हेल्थ को लेकर हम सचेत हैं। एक सवाल और मैं ले लेता हूँ। सुनील कुमार भी पूछ रहे हैं डॉक्टर सरीन कि वो पूछ रहे हैं कि उनका फैटी लिवर है, ये जानने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाए कंफर्म करने के लिए, और अगर आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में भी जानकारी लेनी है तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सा टेस्ट कराएं। देखिए, खुद जो आप कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है हाइट -100। आपकी अगर लंबाई 170 सेंटीमीटर है, 100 घटा दीजिए, वजन आपका 70 होना चाहिए। अगर आप 70 से ज़्यादा हैं तो लिवर में फैट होगी मोटापे के कारण। दूसरा, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करा सकते हैं, उसमें फैट आ जाएगी। और हाँ, सबसे अच्छा है एक फाइब्रो स्कैन जो लिवर में क्वांटिफाई कर देता है, इसमें कोई ब्लड नहीं है, कोई पंक्चर नहीं। और अगर सिंपल ब्लड टेस्ट कराएं तो जैसे SGPT का टेस्ट होता है ब्लड में, SGPT 30 से ज़्यादा है तो चिंता है। और मेरा ख्याल है लिवर में फैट भारत में करीब 25% लोगों में, अगर है तो टेंशन मत लीजिएगा। यू मे बी 1 in 4 एंड ट्राई दैट यू आर इन नॉर्मल वेट टू कीप हेल्दी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। द बेस्ट थिंग इज टू हैव फ्रेश एंड गुड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. Don't watch TV except DD. Maybe once in a while watch the TV and watch less than 30 minutes. And yes, do good reading and be creative. Don't watch what others are saying. Do what you should do. और ये फैटी लिवर रिवर्सिबल भी है? कुछ लोग जानना चाहते हैं, रवि जानना चाहते हैं कि अगर उनको फैटी लिवर बोला गया हो गया है तो क्या वो रिवर्सिबल भी है अगर वो खूब कसरत करें या हेल्दी लाइफस्टाइल रखें? रिवर्सिबल, बहुत अच्छे से रिवर्सिबल है। और लिवर फैट एंड बॉडी फैट का काफ़ी रिश्ता होता है, पर कई लोग पतले दुबले होते हैं, कहते हैं 30 साल का था, पतला दुबला था, फिर भी गुड़क गया। इसलिए गुड़का कि लिवर में फैट ज़्यादा होती है तो हार्ट में ज़्यादा होती है। बचने का बेस्ट तरीका यही है कि एक बार टेस्ट करा लें, SGPT 30 से ज़्यादा नहीं हो, लिवर में फैट के लिए अल्ट्रासाउंड कराएं। और हाँ, अगर रियली उसमें फाइब्रोसिस है, लिवर में स्टेज 2 की फाइब्रोसिस है, जो भी फाइब्रोस्कैन से पता लगती है, तो दवाइयाँ ज़रूर लेनी, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। नई दवाइयाँ बहुत आ गई हैं। और भोजन में ध्यान रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हार्मफुल हैं फैट से। सो डोंट टेक एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, बी ऑन प्रोटीन्स। खाना जितना खाते हैं उसका हाफ कर दें। कोविड में बाहर नहीं जाना होता है, एक्सरसाइज नहीं होती, तो रिड्यूस योर फैट, रिड्यूस योर कार्ब्स एंड बी ऑन प्रोटीन्स. Okay, thank you so much for joining us, Dr. Sareen and Dr. Saraya, to talk about
issues related to the liver, specifically hepatitis, because today is World Hepatitis Day, and it's a disease that needs to be countered in a very major way. Although vaccine is available, its prevalence is very, very high still in the world, and even in India. In India, 40 million people, that's not a small number. And in these times of COVID, of course, it's a fresh challenge, a renewed challenge to get rid of hepatitis as well, but it can all be done. It's quite possible. रजनी, बिल्कुल। और अभी ज़रूरत इसी बात की है कि आप पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल मानसिक सेहत को लेकर पॉजिटिव रहिए, हेपेटाइटिस या कोरोना को लेकर पॉजिटिव मत रहिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आपकी सेहत से संबंधित तमाम जानकारियां लेकर हम फिर कल डॉक्टर स्पीक में आपके सामने हाजिर होंगे। रोजाना आते हैं, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, जब भी आपको समय मिले आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ भी रहेंगे, एंड दे विल आंसर योर क्वेश्चंस, विल मेक श्योर ऑफ दैट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार।